कुरान की कोई एक ऐसी आयत जो आप जितनी बार पढ़ें आपको मजा आए? आई एम माशाल्लाह रजिस्टर्ड निकाह ख्वान। मैं अपनी फैमिली के अंदर जनाजे और निकाह भी पढ़ाता हूँ। You guys have given us so many brands. It's like Barize, Kesaria, Mini Miners, Shahnameh. फ़बी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। So tell us more about Zaman Foundation. कहीं पे फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और कहीं पे अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन फाइनेंशियली हालात इजाज़त नहीं देते। क्या लोग वाकई सदका जारिया के कॉन्सेप्ट को मानते हैं? हमारा जो मोटो है दैट इज़ अपनी मदद आप। So helping people help themselves. मतलब ये जो बहावलपुर, चिश्तियाँ, बहावलनगर, थर पारकर के लोग हैं, ये आपको पैसे महाना देते हैं for this service provision. Zaman Foundation started in 2005. We're registered in the section 42 of the Constitution of Pakistan. अब ज़मान फाउंडेशन ने किन किन इलाकों में अपना काम किया है? अगर आपने सदका जारिया में जारिये वाले हिस्से को जारी रखना है तो उसके लिए लोगों की ओनरशिप डलना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है कारोबार को लेकर आगे बढ़ें। अल्लाह से लगाव के बारे में क्या ख्याल है आपका? स्कर्दू, लाहौर, कसूर, सरगोदा, राजनपुर, हासिलपुर, चिश्तियाँ, बहावलनगर, बहावलपुर, टंडोवाला यार, उस्ता मोहम्मद, रुझान मज़ारी, थर पारकर में 6 मुख्तलिफ गाँव हैं, उनमें लगी हुई हैं। टमन, तलागंग, दैट्स इन नॉर्थ केपी। अब जब आपने ज़मान फाउंडेशन को चलाते हुए कुछ अरसा हो गया आपको, तो क्या अब आपको वो सुकून फील होता है जो आपको अपने ब्रांड में फील नहीं होता था? जी। तो फिर ज़मान फाउंडेशन यूएस में भी हो गया, यूके में भी हो गया, कैसा रहा आपका सफ़र? अल्लाह का बहुत करम है। तो जब अल्लाह इतना नवाजे और हल्की सी आजिज़ी इंसान में ना आए तो बड़ी शर्मनाक बात है। अल्लाह मियां ने भी कहा है दीन और दुनिया इकट्ठे लेके चलने हैं, तो फिर क्या ये ज्यादती नहीं है उस ब्रांड के साथ जो कि आपकी फैमिली का है कि आप उसका पार्ट नहीं है? दोनों को इकट्ठे नहीं चलना चाहिए? लाइक आई सेड, गैब से मदद आती है, दैट कुड बी वन ऑफ द थीम्स, बट रियली बिकॉज हमने कभी लाहौर में नहीं फंड रेजर किया। ज़मान फाउंडेशन को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? वुड से कि अबू हैज बीन एक्सट्रीमली जनरस एंड विजनरी। ही ऑलवेज हैज बीन अ विजनरी कि उन्होंने हमें कभी भी he never bound us to any particular job. अगले 5 साल में I would love to see it as an established, recognized global charity, inshallah. Whenever I think about the origin of brand in Pakistan, the only family that comes to my mind is Sarina and CFAM Industry, the Barize Kesaria family. And today in my Coffee with CEO, I am having one of the family member, Umar Badiuzzaman, who is the Director and Chief Executive Officer for Zaman Foundation and sabsaath.org. How are you? I am well. Assalamu alaikum Nazia. Thank you for having me. What an amazing family it is. You know, you guys have given us so many brands. It's like Barize, Kesaria, Mini Miners, Shahnameh. Woo! Well done. Thank you. Well, all thanks goes to the elder generation. Mashallah. We're third generation now, but Popo and Abu probably have put in the most to take it forward, mashallah. Yes, and the way you talk about your Popo, matlab everyone do talks about their Abus, but there are way less who speak so high about their entrepreneur Popo as well. So that's super amazing. And by the way, you guys have given us Care Foundation as well, and now Zaman Foundation as well. So this philanthropy thing runs in the family? Gee, very much so. Goes back much longer than my life. So काफ़ी पुरानी है. I've seen my mother growing up, my father, my popo, other relatives in the family, whether it's charity at home, outside, it's always been there. So I have volunteered myself in Care as well. So I know that how much serious you guys take this philanthropy side. So tell us more about Zaman Foundation. Zaman Foundation started in 2005. We're registered in the section 42 of the Constitution of Pakistan. And our main areas of intervention are clean drinking water, providing access to that across Pakistan, scholarships, healthcare, food security, and disaster management. इस सारे में जो नुक्ता है जो हमें अलग करता है बाकी सब से, that is the way we go about charity. It's very unique, बहुत मुनफरिद तरीका है, और हमारा जो मोटो है that is अपनी मदद आप. So helping people help themselves. जो तमाम हम काम करते हैं उसमें लोगों से हम हिस्सा डलवाते हैं. जो बेनिफिशरीज़ हैं अगर वो हिस्सा नहीं डालते तो हम काम ही नहीं करते. एंड ये शुरू में लगता है कि बड़ा कोई ज़ालिमाना तरीक़ाकार है, लेकिन दरअसल अगर आपने सदका जारिया में जारिये वाले हिस्से को जारी रखना है
तो उसके लिए लोगों की ओनरशिप डलना बहुत ज़रूरी है। मगर क्या लोग वाकई सदका जारिया के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और वो अपने काम को जारी रखते हैं? अगर आपके 10 लोग हैं तो उनमें से कितने लोग हैं जो हमेशा जारी रखते हैं? एक रेशियो क्या है? That's a very good question. I'm glad you've asked that. I'll answer that with another question. अगर मैं आपसे कहूँ कि आज क्या आप पाकिस्तानी टैक्स देने को तैयार हैं तो आप मुझे क्या कहेंगी? नहीं है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हमारा ये मॉडल 5 साल से पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह कामयाबी से चल रहा है कि पाकिस्तानी टैक्स देने को तैयार हैं। द एग्जाम्पल आई विल गिव यू इज़ कि पूरे पाकिस्तान में चाहे बलूचिस्तान है, सिंध है, जनूबी पंजाब है, KPK है, गिलगित बल्तिस्तान है, we go to communities, we ask for communities to pitch in 20% of the equity for putting up a water project. They give 20% of the equity for the solar run water project. They give the land, which is 3 marlas. They make a committee and they look after the plant themselves. These are water filtration plants. Lastly, जो महाना उसके अखराजात हैं वो भी वही भरते हैं. And our recovery rate across Pakistan is above 90% of these monthly. और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मांगना भी नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं देना पड़ता. So I am here to tell you कि पाकिस्तानी टैक्स देने को तैयार हैं, provided this is not a catchphrase. There's a condition to it. Provided कि जो आप पैसे खर्च रहे हैं नाजिया, उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की बेहतरी के लिए खर्च हो रहे हैं. So जब उनके सामने प्रोजेक्ट होता है, उन्हीं की कम्युनिटी को उससे फ़ायदा होता है, तो वो फिर कई जो कम्युनिटीज़ हैं वो तो 6 महीने इन एडवांस पैसे देती हैं. So we have communities and we're not talking about rich communities here. These are communities in Thar Parker, Tando Alayar, Rajanpur, Rujhan Mazari, Hasilpur, Bahawalnagar, Chishtiyan, Sargoda. They're all across the country. मतलब ये जो बहावलपुर, चिश्तियाँ, बहावलनगर, थर पारकर के लोग हैं, ये आपको पैसे महाना देते हैं for this service provision. हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाते. These are the fee that we give the service provider जिसने हर महीने हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हाँ प्लांट को मेंटेन करना है. So और ये अमीर लोग नहीं है. और ये अमीर लोग नहीं. अभी मुझे नाजिया कही थी कुछ ऐसा पहले, आप मार्केट क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ मार्केट क्यों नहीं करते. ज़मान फाउंडेशन को जब भी हमारी एक ही प्लांट की इफ्तिताह होती है, और इफ्तिताह बहुत बड़ा लफ्ज़ है, एक छोटी सी कह लें गैदरिंग होती है जिसमें एक दुआ होती है और हर किसी को याद दहानी हर किसी की कराई जाती है कि ये ना किसी सियासी बुनियाद पे लगाया गया है, ना ये किसी की ज़ाती जागीर है, ये पूरी कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है. अब जब एक इफ्तिताह होती है तो उस पर मुख्तलिफ दीगर गाँव से 4 कम अज़ कम या 3 कम अज़ कम और लोग आए हुए होते हैं, उनके बुजुर्गान, जो कि कहते हैं हमें कि हमें आपकी कंडीशंस का पता है और हम तैयार हैं हमारे इलाके में लगाएं. So these are communities all across Pakistan who are struggling, but they recognize what their needs are. They know they need water, they know they need education, etc. And क्योंकि हमारा फोकस पानी पे है, तो पानी के प्रोजेक्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया 20% इनिशियल एक्विटी, committee that runs the plant, 3 मरला या 10 मरला if you're in Sindh ज़मीन for establishing the plant, ताकि वो किसी की ज़ाती जागीर ना हो, वो फाउंडेशन के नाम हो, और महाना अखराजात ये सब माशाल्लाह तय होते हैं और ये with 90% प्लस रिकवरी रेट ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस ये पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं. 10% का जो बैकलॉग आ जाता है फिर क्या होता है? 10% के बैकलॉग में होता है फाउंडेशन के पास अपने रिजर्व्स होते हैं, डोनर्स होते हैं, बट द बैकलॉग सिर्फ हमें वहाँ पे आया है जहाँ पे कोई बहुत डिजास्टर स्ट्रक एरिया हो, जहाँ पे लोग अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो पाए, तो फिर वो लोग पैसे नहीं दे पाए. वो लोग नहीं दे. मिसाल के तौर पे राजनपुर में 2 प्लांट्स हैं और एक उस्ता मोहम्मद में है. उस्ता मोहम्मद इज इन बलूचिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद है. वहाँ पे ये सिर्फ 3 प्लांट हैं जो पैसे नहीं दे पाए क्योंकि दे हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लडिंग, और उधर हर साल फ्लडिंग होती भी है. बट अदरवाइज जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, वी हैव टोटल ऑफ 35 प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह एज ऑफ नाउ अक्रॉस पाकिस्तान. बाकी कम्युनिटीज़ ना सिर्फ वो महाना अखराजात पूरे देती हैं, बट जो छोटे मोटे प्लांट के रिपेयर्स आते हैं, एक सोलर प्लेट टूट गई कुछ, वो भी खुद लगाते हैं माशाल्लाह. सो इट्स आई रियली मैं अमेरिका भी अभी गया और उनको ये भी नहीं लगता कि कोई उनको नवाज रहा है, कोई दे रहा है, कोई उनको भीख दे रहा है, कोई मदद कर रहा है. कि इट इज़ दे आर द मेजर स्टेक होल्डर. अगर वो नहीं भरेंगे पैसे तो उनके अपने बच्चों को और उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा. सो दे अंडरस्टैंड द नीड. मैं अमेरिका में भी लोग हैरान हो रहे थे. आई वाज आवर फाउंडेशन इज रजिस्टर्ड इन द US, सो आई वाज देयर फॉर इनॉग्रल फंड रेजिंग टूर जस्ट 2 months ago माशाल्लाह. उसमें भी जब मैं पूछता था ये सवाल कि आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी टैक्स देने को तैयार है, नॉट अ सिंगल
raise the hand in the room. लेकिन at the end of the presentation उनसे हमेशा पूछता था, after showing them the facts and the figures, अब आपका क्या ख्याल है? Okay, and they would have changed their mind. So people are willing to pay taxes. हम पाकिस्तानी के एमी we give them a bad rap, but they are willing to pay. They just need to have the trust and confidence कि जो वो पैसे दे रहे हैं वो उन्हीं पे लगेंगे. उमर, क्या आप एक गो में सारे शहरों के नाम ले सकते हैं जहाँ पे आपके प्लांट लगे हुए हैं? एक गो में कोशिश कर सकते हैं. हाँ यार, जरूर प्लीज, कि आप ज़मान फाउंडेशन ने किन किन इलाकों में अपना काम किया है उनके नाम लीजिए, क्योंकि अब टिकट पे करेंगे. रेडी गो, आपने मुझे स्टार्ट करना है तो मैं शुरू करता हूं. ठीक है, रेडी गो. स्कर्दू, लाहौर, कसूर, सरगोदा, राजनपुर, हासिलपुर, चिश्तियाँ, बहावलनगर, बहावलपुर, टंडोवाला यार, उस्ता मोहम्मद, रुझान मज़ारी, देयर इज़ थरपारकर में 6 मुख्तलिफ गाँव हैं, उनमें लगी हुई हैं. टमन, तलागंग, दैट्स इन नॉर्थ केपी. और किधर है? हवेलियाँ इन एबटाबाद, और अभी जहन में और नहीं आ रहे. कुछ फखर फील हो रहा है कि मतलब कि आपने इतने सारे इलाकों में साफ पानी का प्लांट लगाया है. फखर तो नहीं, आजी महसूस होती है, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज व्हेन यू वर्क इन एनीथिंग, जब आप कुछ शुरू करते हैं या कोई कदम उठाते हैं तो उसमें आपको गैब से बहुत मदद आती है. एंड इट इज़ इट्स नॉट अ कैच फ्रेज, यू एक्सपीरियंस इट. आप चाहे वालदा हैं, आप बीवी हैं, मियाँ हैं, कारोबार चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फंसते हैं. व्हेन यू आर स्टक, तो यू सी गॉड वर्किंग. सो अल्लाह का शुक्र है, गॉड्स बिन वेरी काइंड एंड गॉड इज काइंड. तो शुक्र है चल रहे हैं, तो आज ही महसूस होता है. उमर, बदियो ज़मान एक बड़ी फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से है, उसका बड़ा जद्दी पुश्ती कारोबार करते हैं लोग. क्यों आया वो ये फाउंडेशन के चक्रों में? क्यों आया कि वो फलाही काम करेगा? क्या ज़रूरत थी? Well, I worked for 10 years in the family business almost. Okay. And as soon as I reached general managership of one of our brands, तो मुझे तब लगा, can I do this for the next 10-20 years? And I couldn't for the life of me bring myself to answer yes. And no matter कितने millions of dollars या कितने billions of rupees या क्या profit बन जाता, तो I couldn't bring myself to say कि that would satisfy me personally of having spent my time that way, whatever time God has given. So उसमें both sides of my family, they have a history of giving, mashallah, and that's not been lost upon me. तो बस बड़ों को देख के उनसे रिसीव करके, और ये भी मेरे वालिदैन का लगाया हुआ पौधा ही है. मगर ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द के लोग, बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है कारोबार को लेकर आगे बढ़ें? That I would say कि चाहत तो मेरे वालिद की भी है और थी. But I would say कि अबू's been extremely generous and visionary. He always has been a visionary. कि उन्होंने हमें कभी भी, he never bound us to any particular job. अब जब मेरी अपनी तालीम भी जो है, I studied first from Canada and then from Punjab University. So undergrad मेरा is in philosophy, politics, comparative religion and history. वो भी मेरे वालिद ने कहा, जा पुत्र पढ़, ठीक है, जे दिल करदा है पढ़. तो शुक्र है अल्लाह का कि आई वाज एबल टू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स. फिर मेरा मास्टर्स इज़ इन अरबिक, उसमें भी मेरे वालिद ने मुझे नहीं रोका. आई एम माशाल्लाह रजिस्टर्ड निकाह ख्वान. मैं अपनी फैमिली के अंदर जनाजे और निकाह भी पढ़ाता हूँ, एंड आई टीच द कुरान एज वेल. उमर, ये तो कोई बहुत ज़्यादा 60 साल बाबा की स्टोरी लग रही है, जिसको फिलोसफी में इंटरेस्ट है और अरबिक में इंटरेस्ट है. नाउ यू साउंड लाइक माय फादर. अच्छा. बिकॉज़ मेरे वालिद जो कहते हैं, उमर तुम्हारे में 2 रूहें फंसी हैं, एक 5 साल की और एक 50 साल. हाँ, तो मैं नहीं 50 जरा छोटा बता दिया आपने. तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ये कौन से साला उम्र से बात कर रही हूँ. ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? आपके अंदर ये वाली सारी हिस्से कहाँ से हैं? ये इट्स ऑल द एल्डर्स इन द फैमिली. मेरे अपने भाई, मेरे चचा, खाला, नाना, नानी, दादा, दादी, आई मीन उनका निचोड़ कह लें, जो थोड़ा बहुत मैं उठा सकता था वो उठाया, बिकॉज दैट्स आई हैव सीन देम ऑल give in some way or the other. So I'm the youngest, so I have the benefit of, I have the Goldilocks effect. सबको देख के उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैं फ़ायदा मैंने काफ़ी लिया है, मुस्तफ़ीद हुआ from the elders and continue to do so. अल्लाह उनके सबका साया सर पे कायम रखे. अल्लाह से लगाव के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ये सब कुछ अल्लाह से लगाव का बाय प्रोडक्ट है? जी, नियत तो यही है कि इसके ज़रिए इंशाल्लाह अल्लाह से और कुर्ब नसीब हो. नहीं, मगर ये अल्लाह मियाँ कब से आपकी ज़िंदगी में आए? as far back as I can remember. It's इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान खुद फरिश्ता या दूध में धुला हुआ हो.
गलतियां सब करते हैं, मैंने भी बहुत सी गलतियां की हैं, अभी भी होती हैं, लेकिन लगाओ और कोशिश पूरी होनी चाहिए, तो उस तरफ लगे हुए हैं। तो अब जब आपने ज़मान फाउंडेशन को चलाते हुए कुछ अरसा हो गया आपको, तो क्या अब आपको वो सुकून फील होता है जो आपको अपने ब्रांड में फील नहीं होता था? जी होता है। और जब मैंने छोड़ा था 2018 में लेजर क्लब को, which was the brand that I had become general manager for, जब उसको छोड़ा था तो I had even though I come from a privileged background, लेकिन at my age at that time you don't want to be asking your parents for money, and for a year and a half, 2 years I didn't have a job, so I was शुक्र है मैं रेंट नहीं देता, बिजली के बिल नहीं देता, बट बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे, I was living off of my savings and I had 1 kid and 1 on the way at that time. So 6, 8, 9, 10 महीने बाद जब फाइनली मेरा चैप्टर क्लोज हुआ लेजर क्लब में, दे क्लोज द फाइल, तो आई क्लीनड आउट माई ऑफिस, मैं नए ऑफिस में बैठा हुआ था ज़मान फाउंडेशन के, तो एक ऑर्फनेज के साथ काम किया था 2011 में, तो उसका कार्टन में से मैंने निकाला, तो ऑर्फनेज का कार्ड लिखा, तो निकला, तो उसमें लिखा हुआ था व्हेन वन डोर क्लोजेज अनदर ओपन्स। तो उसमें ये कि इट वाज द टाइमिंग ऑफ इट, एक्चुअली इट वाज, दैट माइट बी अ क्लीशेड सेइंग, लेकिन इट वाज द टाइमिंग ऑफ इट एंड हाउ आई फाउंड दैट ऑलमोस्ट 10 years डाउन द रोड एट द टाइम दैट आई फाउंड इट एट। वो अल्लाह का शुक्र है, इस तरह कुछ ना कुछ, आप कहते हैं ना, गैब से मदद आती है, मगर कुछ ना कुछ तसल्ली अल्लाह ताला देता रहता है। मगर मैं कहती हूँ, देखें जी, अल्लाह मियां ने भी कहा है दीन और दुनिया इकट्ठे लेके चलने हैं, तो फिर क्या ये ज्यादती नहीं है उस ब्रांड के साथ जो कि आपकी फैमिली का है, कि आप उसका पार्ट नहीं है, दोनों को इकट्ठे नहीं चलना चाहिए? आई थिंक कि अगर तो आप में सलाहियत है तो आई थिंक कि दोनों को साथ लेके आप चल सकते हैं, लाइक माई फादर हैज डन, लाइक माई पुप्पो हैज डन, एंड दे कंटिन्यू टू डू, अल्हम्दुलिल्लाह. But I think the brands have benefited because they have a much more professional CEO now, Yamin Saab, and the group CEO, that is my brother Mustafa Zaman. He is a much more able CEO than I could have been. So उनका रुझान भी उस तरफ है, उनकी कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा। तो भाई आजी की कोई फॉर्म हो गई? नहीं, आजी तो नहीं। I think कि I'm just very lucky and blessed कि इस तरह के फैमिली सेटअप में हैं where there was both the understanding and the financial capacity to allow me to do this, because कहीं पे financial capacity होती है तो understanding नहीं होती, और कहीं पे understanding होती है लेकिन financially हालात इजाज़त नहीं देते। तो अल्लाह का बहुत करम है, तो जब अल्लाह इतना नवाजे और हल्की सी आजी इंसान में ना आए तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो फिर ज़मान फाउंडेशन यूएस में भी हो गया, यूके में भी हो गया, कैसा रहा आपका सफ़र बैरून मुल्क जाके? It was like I said, गैब से मदद आती है, that could be one of the themes, but really because हमने कभी लाहौर में नहीं फंड रेजर किया, मुझे पता है। और जब हम जा रहे थे अमेरिका तो I had no idea what to expect, and that's why I was sharing with you earlier, we didn't even have a target for fundraising because we didn't know. We just thought we'd go, we'd introduce ourselves and raise awareness and establish ourselves as a credible organization doing good work in Pakistan sincerely. So उसमें जो है उसी तरह again alhamdulillah we went to 7 different states, and in the end we ended up going to Canada also. We're getting registered inshallah there as well. So alhamdulillah we've done really well, much more than our expectations. Please उमर, कोई अब ऐसी भी बातें बताएं कि आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने गाते हैं, कि मतलब ऐसे सारे काम आपकी ज़िंदगी में कितने हैं? वो थोड़े कम हुए हैं because I'm a father of 3 mashallah. अच्छा, तो you're very busy with them, okay. That takes up time as well. Their kids are number 1 priority. But उसके अलावा I love paddle. So it's been 3 years thanks to my बचपन का टेनिस बड़ी, पहले टेनिस खेलते थे and now paddle. So paddle is my go-to sport nowadays. अभी कितने अब okay. Do you read books? 3 साल से खेल रहा हूँ, but एक मेरा दोस्त वो जो रेगुलर पार्टनर है वो लंदन चला गया है, यहाँ पे एक और मेरा बचपन का दोस्त है, उसके साथ है, मिल गया, मतलब आपको कोई साथी। Okay, do you read books? Not as often as I'd like. The book that I focus on the most generally, because मैं हफ्ते में 3-4 दफ़ा पढ़ रहा होता हूँ, is the Quran. Because I study the Quran from the Arabic, so I study with my ustad. You can understand better than the rest? जी, because I did my masters in that, and then I studied with my it's been 7 years मैं ustad के साथ अरबी में ही कुरान पढ़ रहा हूँ, तो it's very profound reading the Quran from the Arabic and really understanding the root of it. कुरान की कोई एक ऐसी आयत जो आप जितनी बार पढ़ें आपको मजा आए, कोई ऐसी कोई आपको एकदम याद आए? देखिए, एक तो फबी आई आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, there many, I mean या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना जी, that's दुआ है ज़िंदगी के लिए कि इंशाल्लाह आखिर में सुनने को यही मिले कि ओ reassured soul, return to your Lord, pleased with him and him pleased with you, enter into my servants, enter my paradise.
So ये और बहुत I can't name enough. नहीं आपने फिर भी जो आपके दिल के करीब जी 2 और कहूँगा अल्लाह बिज़िक्र लाई तत्मईन कुलूब which is only in the remembrance of God do hearts find rest. और आखिरी जो सबसे relevant है पाकिस्तानियों के लिए perhaps that is कि अल्लाह ताला ये सूरा राद में है, अल्लाह ताला कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक जो उनके दिलों में है वो नहीं बदलते। अच्छा ये सूरत है, ये आयत है। जी I thought it's a journal नहीं ये सूरा राद में है। एंड अगर मैंने इन सारों में से एक मुंतखब करनी होती तो वो ये होगी आज के लिए, खसूसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, it would be this। वाह उमर, नेटफ्लिक्स देखते हैं आप? टाइम नहीं मिलता नहीं मतलब कोई एक्टर ये मेरी बेगम की शिकायत रह चुकी है, बट नेटफ्लिक्स का वक्त नहीं मिलता। कोई ऐसी बात बताएं अपने बारे में जिससे हमें पता चले कि आप बहुत ज़्यादा हैपनिंग और वाइब्रेंट भी हैं। Oh gosh, probably I'm not vibrant because मेरे ज़हन में इस पे कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है। ज़मान फाउंडेशन को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में I would love to see it as an established, recognized global charity, inshallah. But more important than it being recognized, I would want its work being impactful, even more so on the ground, and its work continuing well beyond. इतनी institutionalized हो कि it goes well beyond myself. Thank you so much, Umar. It was pleasure having you. मैंने इतना छोटी उम्र का इतना समझदार CEO कम ही देखे। तो and I wish Zaman Foundation progress in upcoming next 5 to 10 years. और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह we will be able to see Zaman Foundation across the globe. Thank you so much for coming to Coffee with CEO.